नमस्कार, ET नाउ स्वदेश के इस खास बजट स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आम बजट 2022-23 पेश किया। तमाम सेक्टर्स को कुछ न कुछ उम्मीदें देता हुआ ये बजट सरकार को काफी भाया। वित्त मंत्री ने इस बजट को आम लोगों का बजट बताया है और कई बड़े ऐलान भी किए हैं। सरकार ने बजट में कैपेक्स बढ़ाने, क्रिप्टो पर 30% टैक्स लगाने जैसे कई ऐलान किए हैं। वहीं बजट में आयकर दरों या स्लैब में बदलाव की उम्मीद लगाए टैक्स पेयर्स को निराशा ही हाथ लगी है। आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन वित्त मंत्री के मुताबिक 2 साल से कोई टैक्स ना बढ़ाना बड़ी राहत है। Honorable Speaker, sir, I take this opportunity to thank all the taxpayers of our country who have contributed immensely and strengthened the hands of the government in helping their fellow citizens in this hour of need. So I have brought in a little verse from the Mahabharata. I won't spend more time reading because I would like the speech to get enough time. However, the substance of it is the king must make arrangements for Yoga Kshema, which is the welfare of the populace, by way of abandoning any laxity and by governing the state in line with Dharma, along with collecting taxes which are in consonance with Dharma. This is Mahabharata Shanti Parva Adhyaya, Shloka 11 from 72. Drawing wisdom from our ancient texts, we continue on the path to progress. The proposals in this budget, while continuing with our declared policy of stable and predictable tax regime, intend to bring more reforms that will take ahead our vision to establish a trustworthy tax regime. This will further simplify the tax system, promote voluntary compliance by taxpayers, and reduce litigation. Introducing new updated return. India is growing at an accelerated pace and people are undertaking multiple financial transactions. The Income Tax Department has established a robust framework of reporting of taxpayers' transactions. In this context, some taxpayers may realize that they have committed omissions or mistakes in correctly estimating their income for tax payment. To provide an opportunity to correct such errors, I am proposing a new provision permitting taxpayers to file an updated return on payment of additional tax. This updated return can be filed within 2 years from the end of the relevant assessment year. इसके अलावा जीडीपी को लेकर वित्त मंत्री ने कहा है कि चुनौतियों के बावजूद यहां पर देखा गया है कि देश की इकोनॉमी की जो स्थिति है वो काफी बेहतर है। Honorable Speaker, sir, I present the budget for the year 2022-23. At the outset, sir, I want to take a moment to express my empathy for those who had to bear adverse health and economic effects of the pandemic. The overall sharp rebound and recovery of the economy is reflective of our country's strong resilience. India's economic growth in the current year is estimated to be 9.2%, highest among all large economies. I recognize we are in the midst of an Omicron wave with high incidence but milder symptoms. Further, the speed and coverage of our vaccination campaign has helped greatly. With an accelerated improvement of health infrastructure in the past 2 years, we are in a strong position to withstand challenges. I am confident that with Sabka Prayas, we will continue our journey with strong growth. Honorable Speaker, we are marking Azadi Ka Amrit Mahotsav and have entered into Amrit Kal, the 25-year-long lead up to India at वहीं पीएम मोदी ने बजट की जमकर तारीफ की है और बजट को सभी क्षेत्रों के विकास का बजट बताया है। उनके मुताबिक ये बजट इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और विकास की नई संभावनाओं से भरा है। ये बजट
अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। और एक नया क्षेत्र और खुला है और वो है ग्रीन जॉब्स का। ये बजट तत्कालीन आवश्यकताओं का भी समाधान करता है और देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य को भी सुनिश्चित करता है। ये पिछले कुछ घंटों से देख रहा हूं जिस प्रकार से इस बजट का हर क्षेत्र में स्वागत हुआ है। सामान्य मानवी की जो सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है उसने जनता जनार्दन की सेवा का हमारा उत्साह अनेक गुना बढ़ा दिया है। उधर देश में पहली बार रेलवे सेक्टर को लेकर सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है, जिसको लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव काफी उत्साहित हैं। आखिर आने वाले वक्त में रेलवे की तस्वीर कैसे बदलने वाली है, इसको लेकर हमारे सहयोगी समीर दीक्षित ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में जब बजट पेश किया तो 33 बार डेवलपमेंट शब्द का जिक्र किया, इन्वेस्टमेंट शब्द का जिक्र भी 33 बार किया और ऐसे ही अपॉर्चुनिटी शब्द को भी बार बार दोहराया। लेकिन इन शब्दों के मायने क्या हैं भारत के आर्थिक प्रगति के नजरिए से, और इसमें रेलवे की क्या भूमिका रह सकती है, टेलीकॉम की क्या भूमिका रह सकती है, रोड मैप क्या रह सकता है, ये तमाम बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री, जिनके कंधे पर ये तमाम जिम्मेदारी है। इसलिए सर शुरुआत इसी बात से करूंगा कि रेलवे को लेकर के इकोनॉमिक सर्वे में भी कहा गया था कि ये एक ऐसा सेक्टर है जो लंबे समय के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में कदम बढ़ाएगा। इसकी बारीकियां क्या हैं? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि रेलवे के लिए रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट इस बजट में रखा गया है। 1,37,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, जो कि कभी इतिहास में इतना इन्वेस्टमेंट कभी रेलवे में नहीं किया गया, उतना इस बजट में एलोकेशन किया गया है। जितने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स, सुपर क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स, कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स, रेलवे स्टेशंस का रीडेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी में नया इन्वेस्टमेंट, इन सब के लिए आज एक स्कोप खुल गया, एक नया तरीका खुल गया है। प्लस 400 नई वंदे भारत ट्रेन्स, यानी कि पैसेंजर्स का एक्सपीरियंस टोटली चेंज हो, पूरा एक नए तरीके की जो भारत में ही डिजाइंड, भारत में ही बनी हुई ट्रेन्स वो मिले। प्लस कवच, जो कि सेफ्टी के लिए, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है और बहुत ही रिलायबल टेक्नोलॉजी है, जो कि भारत में ही निर्मित, भारत में डिज़ाइन टेक्नोलॉजी है। उस टेक्नोलॉजी के लिए भी आज बजट में अनाउंस किया गया। तो बहुत ही एक दूरदर्शी सोच है, बहुत ही ये अमृत काल में रेलवे को 2047 तक हमें कैसा ले जाना है, उसके लिए तैयारी है। जो ज्यादा बजट एलोकेशन, जो ज्यादा बजट आवंटन आपको इस बार हुआ है, इसका ज्यादा खर्च आप कहां करना चाहेंगे और कहां सबसे पहले आपको लगता है कि ये एरिया है जिसमें सुधार करना चाहेंगे आप? इसमें कैपेसिटी इंक्रीज करना, सेफ्टी के सिस्टम्स लगाना, नई टेक्नोलॉजी लाना, वो सबसे बड़े महत्वपूर्ण 3 टारगेट्स रहेंगे। क्योंकि पैसेंजर्स का एक्सपीरियंस इससे डिफाइन होता है और रेलवे की आगे की इनकम की पोटेंशियल, कंट्री की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम कैसे करना, उस सब के पीछे इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात है इस बार पहली बार रेलवे को कैसे छोटे उद्यमियों से, छोटे किसानों से जोड़ा जाए। हमने किसान रेल चला के एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया। अब उस एक्सपेरिमेंट से सीख के छोटी इंडस्ट्रीज जो है, एमएसएमई सेक्टर है, उनके लिए कैसे एक नई सर्विस क्रिएट की जाए, पोस्ट और रेलवे को कैसे इंटीग्रेट किया जाए, इन सब सोच के, इन सब थॉट प्रोसेस के साथ जो चल रहे हैं, मुझे विश्वास है कि आगामी वर्षों में इसके इतने अच्छे परिणाम होंगे कि रेलवे के लिए भी, पोस्ट के लिए भी, एमएसएमई सेक्टर के लिए और छोटे किसानों के लिए, सबके लिए अच्छे परिणाम होंगे। दूसरी ओर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बजट को नीट एंड क्लीन बताया है और केंद्र सरकार की तारीफ की है। बजट को लेकर हमारे सहयोगी नयनतारा राय ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से बात की। सर, अगर हम ये बजट को देखेंगे, एक और बारी इतनी ट्रांसपेरेंसी, कुछ भी ग्रे मटेरियल नहीं है फाइन प्रिंट में, everything black and white with a big thrust on infrastructure. Was that the big message from the Prime Minister? Very clearly, the Honorable Prime Minister believes that it is India's time to invest in the future.
And I think this has been a very, very plain speaking, simple to understand, uncomplicated budget, which has prepared the foundation for a resurgent India, for a India of tomorrow. In a way, the focus being on infrastructure spending, the huge thrust on capex by the government, 7 lakh crores on its own, 10.5 lakh crores with the states, will itself have a catapulting effect on the economy with a 4x multiplier. You can imagine the kind of demand that this will generate, the jobs and working opportunities that this will give, the way the MSMEs and all different sectors of industry and services will stand to gain. And on the back of this, I suspect that the private investments also will now start seeing the light of day in a big way. जब फिस्कल डेफिसिट बिल्कुल चेक में है, आप इतना एक्सपेंडिचर को बढ़ा भी रहे हैं, लेकिन जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है उनको रिवॉर्ड नहीं कर रहे हैं, और जब महंगाई भी ऊपर बढ़ रही है, क्योंकि अगर हम एनडीए सरकार के बारे में बात करें, साल पे साल बोला जाता है कि हम सैलरी क्लास को, मिडिल क्लास को रिवॉर्ड करेंगे, लेकिन वो रिवॉर्ड कब आएगा? बहन जी, आप देखेंगे कि कुछ समय पहले ही हमने 5 लाख रुपए तक की जिनकी आय है, टैक्सेबल इनकम है, उसको पूरी तरीके से टैक्स से मुक्ति दिला दी थी। और आपको ध्यान होगा तब हमने बताया भी था कि 5 लाख टैक्सेबल इनकम यानी लगभग 7.5-8 लाख रुपए भी अगर इनकम हो और आप अपने अलग अलग बेनिफिट्स लें तो आपको 0 टैक्स पे आपका गुजारा चल सकता है। मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर वक्त मध्यम वर्ग की चिंता की है, मध्यम वर्ग के बारे में सहूलियत देने की लगातार कोशिश रही है। आज की जो परिस्थिति में हम चाहते हैं कि सरकार और निवेश करे, इसमें हमें रिसोर्स कंस्ट्रेंट ना हो, तो रिसोर्सेज को कंजर्व करना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमने कोशिश ये करनी है कि लोगों की आमदनी बढ़े, लोगों के लिए नए रोजगार के, नए काम के अवसर मिले। तो मैं समझता हूँ इस बजट में ज्यादा फोकस इनकम ग्रोथ और ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एक्सपैंडिंग द पाई के ऊपर रहा है। और कोशिश यही है कि ये जो 10 लाख करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा सरकार द्वारा, इसी के साथ साथ हम एनकरेज करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर डिमांड बढ़ने से प्राइवेट सेक्टर निवेश भी बढ़े, और इस बढ़ते हुए निवेश में हमारे युवा युवतियों को और रोजगार के और काम के नए अवसर मिले और देश भर में सबकी आमदनी बढ़े। ये हमारी प्राथमिकता है। और अब बात ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर लगी मुहर की। बजट से पहले ही हमने आपको बताया था कि सरकार बजट में पीएलआई स्कीम के दायरे को बढ़ा सकती है, और बजट के ऐलान के बाद इस खबर पर फाइनल मुहर लग गई है। हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी इसको लेकर तमाम डिटेल्स दे रहे हैं। देखिए, हमने अपने दर्शकों को बताया था कि सरकार बजट में पीएलआई स्कीम के दायरे को बढ़ाएगी, और साथ ही साथ कुछ क्षेत्रों में जहां पर कि पहले से पीएलआई स्कीम की घोषणा की गई है, उसके लिए फंड एलोकेशन में भी बढ़ोतरी की जाएगी। ठीक सरकार ने उसी तरीके से कुछ सेक्टर्स के लिए पीएलआई स्कीम के दायरे को बढ़ाया है। एग्जाम्पल के तौर पे सोलर पीवी मॉडल्स के लिए सरकार ने ये घोषणा की है कि अतिरिक्त 19,500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे इस स्कीम के लिए। इसका मतलब ये है कि पहले से 4500 करोड़ रुपए की घोषणा की जा चुकी है, और अब इस रकम को अगर जोड़ दें तो ये कुल 24,000 करोड़ रुपए के पास होती है। इसका मतलब है कि सरकार इस रकम के जरिए सोलर पीवी मॉडल्स की मैन्युफैक्चरिंग के दायरे को बढ़ाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगी, और साथ ही साथ 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा के निवेश की उम्मीद जो है सरकार सोलर पीवी मॉडल्स के क्षेत्र में कर रही है। इसके अलावा ईटी नाउ स्वदेश की एक और खबर पर मुहर लगी है। हमारे सहयोगी समीर ने पहले ही आपको बताया था कि रेलवे के लिए कई ऐलान होंगे और सरकार तेज रफ्तार को लेकर आगे बढ़ेगी, और इसी कड़ी में आज बजट में इन तमाम खबरों पर भी मुहर लगी है। और क्या कुछ ऐलान किया गया है, हमारे सहयोगी समीर दीक्षित बता रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा हमने सबसे पहले अपने दर्शकों को
बताया, ठीक उसी तरीके का ऐलान यूनियन बजट में हुआ है। रेलवे सेक्टर के लिए 400 नई वंदे भारत ट्रेन अगले 3 साल में बनाई जाएंगी और चलाई जाएंगी। और वंदे भारत रेलवे का भविष्य होने जा रहा है यात्रियों के लिए। वंदे भारत के जरिए, इन नए ट्रेन सेट के जरिए रेलवे की कोशिश ये है कि हाई स्पीड मोबिलिटी को हकीकत बनाया जाए। वंदे भारत ट्रेन की क्षमता होती है कि वो 160-180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो सफर कर सकती हैं। और इसके जरिए कोशिश यही रहेगी सरकार की, रेलवे की, कि जो अहम रूट है, मसलन दिल्ली मुंबई, दिल्ली चेन्नई जैसे जो अहम रूट हैं, इन शहरों को, इनके बीच में मोबिलिटी यानी कि जो ट्रैवल टाइम है वो तेज हो पाए। और इसके जरिए रेलवे कोशिश करेगी कि ज़्यादा संख्या में यात्रियों को वो अपनी तरफ लेके आ पाएँ, चाहे वो जो अब तक रोड सेक्टर में जितने यात्री छिटक करके चले गए थे या जो अभी हवाई सफ़र ज़्यादा कर रहे हैं, उनको अपनी तरफ लाने के लिए वंदे भारत ट्रेन एक अहम परियोजना है रेलवे की। इसके अलावा रेलवे लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए भी इस बजट में उसका ऐलान हुआ है और उस दिशा में रेलवे फोकस करेगी कि किस तरीके से मौजूदा जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है रेलवे में वो 14% से घटा करके 10 या 11% तक लाए जाए। तो ये अहम ऐलान जिनको हमने बजट में पूरा होता हुआ देखा है। इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी खबरें भी सही साबित हुई हैं और हमारे सहयोगी ने आपको बताया था कि 20 जनवरी को यहाँ बताया गया था कि भारत नेट को सरकार बजट में बढ़ावा देगी और इसका जिक्र बजट में किया भी गया है। तमाम डिटेल्स दानिश आनंद हमारे सहयोगी दे रहे हैं। देखिए, ईटी स्वदेश की टेलीकॉम सेक्टर एक्सक्लूसिव जो हमने दी थी 3 तरह की खबर, वो तीनों की तीनों खबर यूनियन बजट में एक तरह से कंफर्म हो गई हैं। 20 जनवरी को हमने बताया था कि सरकार पूरे देश में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ब्रॉडबैंड को बढ़ावा देगी और उसके लिए सरकार ने आज अनाउंस करा है कि यूसॉफ से 5% फंड यूटिलाइज किया जाएगा ताकि देश भर में जो कनेक्टिविटी है मोबाइल की उसको बढ़ाया जा सके। इसी तरह हमने एक और खबर दी थी कि सरकार भारतनेट प्रोग्राम पर अपना फोकस बढ़ाएगी और एफएम ने आज अपनी स्पीच में बोला कि 2025 तक सरकार का पूरी तरह से एम रहेगा कि पूरे ही गाँव, जितने भी देश में जितने भी गाँव हैं, उनको डिजिटल ऑप्टिकल फाइबर केबल से कनेक्ट करना है और यही खबर हमने 20 जनवरी को भी दी थी। इसके अलावा 28 जनवरी को हमने एक और खबर दी थी कि सरकार 5G ऑक्शन इसी साल कराना चाहती है, चाहे इस फाइनेंशियल ईयर में ना हो, लेकिन अगले फाइनेंशियल ईयर में सरकार जरूर 5G ऑक्शंस कराएगी। और ये भी फाइनेंस मिनिस्टर ने कंफर्म करा है कि सरकार इस साल 2022 से 23 के बीच में 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शंस कराएगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ईटी नाउ स्वदेश की जो बजट एक्सक्लूसिव थी टेलीकॉम सेक्टर की, वो तीनों की तीनों एफएम ने एक तरह से कंफर्म भी कर दी हैं। तमाम खबरें जिन पर मुहर लगी है आज बजट के ऐलान में, लेकिन बाजार ने किस तरह से बजट पर रिएक्ट किया है? बजट को आज बाजार ने भी सलामी दी है और आज बाजार में जोरदार तेजी भी हमने देखी है। सेंसेक्स 848 अंक, जबकि निफ्टी की बात करें 237 पॉइंट की तेजी के साथ बंद हुआ है। लेकिन ओवरऑल आज का दिन कारोबार के लिहाज से कैसा रहा? डिम्पी कालरा हमारे सहयोगी तमाम डिटेल्स दे रहे हैं। बजट 2022 के अंदर ऐतिहासिक रहा और कई मानों में कैपेक्स को लेकर सरकार ने काफ़ी बड़ी घोषणा की और बाजार 2 हिस्सों में बंट गया। पहला हिस्सा ये था कि जो बजट से ठीक पहले था, अब अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें डे हाई लगा और उसके बाद जैसे जैसे बजट की स्पीच खत्म हुई, मार्केट ने डे लो भी टेस्ट कर दिया। लेकिन इस डे लो और डे हाई के अंदर एक अपॉर्चुनिटी भी छुपी हुई थी जिसने बाजार को वापस डे हाई की तरफ जाके क्लोज किया। और अगर आप देख रहे हैं मार्केट के अंदर तो एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ हमको वापस से बनती हुई दिखी है। वजह कौन कौन सी थी आपकी स्क्रीन पर आएगा। पहले आते जरा निफ्टी बैंक पे भी इसको भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे आगे सेक्टर्स पे आ जाएंगे। आप निफ्टी बैंक पे भी देखेंगे, यहाँ पर भी हम पहले डे हाइज बनाया, उसके बाद हमने डे लोज टेस्ट किया और उसका हमने क्लोजिंग जाके करी है करीब 1.5% ऊपर जाके। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अगर चार्ट देखेंगे तो आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग निफ्टी दिखेगा। इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स जिसको हम कहते हैं, आज 9% के आसपास टूटा इंडिया विक्स, यानी कि करीब अभी 20 के नीचे आ चुका है। जो बजट की वॉलेटिलिटी होती है, जो बजट का इंपैक्ट होता है, वो काफी हद तक निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने आज कुछ हद तक डल कर दिया। आप देखें इसके अंदर किसी तरह की कोई रिकवरी नहीं आई। डे हाई बनाने के बाद डे लो पे हमको इंडिया विक्स भी दिखा। बाजार को किसने मजबूती दी, कौन स्ट्रेंथ दे रहा था आज मार्केट्स को, वो था मेटल्स। ऐतिहासिक, क्योंकि सरकार ने जो कैपेक्स अनाउंसमेंट की है उसमें सीमेंट और मेटल कंपलसरी आइटम है, इसलिए मेटल्स के अंदर हमको जोरदार तेजी आती हुई दिखी। एक खबर ये भी आई थी कि हो सकता है कुछ ड्यूटीज को वापस लगा दिया जाए कुछ सेलेक्टिव मेटल प्रोडक्ट्स पे, लेकिन उसका कुछ खास असर नहीं आया, बल्कि मेटल्स तो डे हाई पे बंद हुए।
टिपिकली निफ्टी फार्मास्यूटिकल्स भी, ये शेयर भी काफ़ी ज़ोरदार चले क्योंकि सरकार ने ये अनाउंसमेंट की है कि आगे चल के वो इंफ्रा को भी बूस्ट करेंगे हेल्थ का, और इसका बड़ा बेनिफिट मिलेगा। वैक्सीनेशन की ड्राइव की बहुत बड़ी तारीफ हुई और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सदन गूंजा भी, और करीब 2% ये जाके डे हाइस पे जाके बंद हुआ। ये इंडेक्स भी आईटी इंडेक्स, टिपिकली इसको हेज इंडेक्स माना जाता है। अगर आप देखेंगे तो दो जो मैंने आपको पहले इंडेक्स दिखाया फार्मास्यूटिकल्स और जो मेटल्स का इंडेक्स था, लेकिन आईटी के अंदर था स्विंग ट्रेड, डे हाइज लगने के बाद डेज लो और उसके बाद फिर से डे हाइज पे जाके हम बंद हुए। ये टिपिकली भारत की ग्रोथ को वापस से दर्शा रहा है और आज बैंक निफ्टी और आईटी दोनों की ग्रोथ हमको अच्छी आती हुई दिखी है। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी के हिसाब से देखेंगे तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, पहला निजी बैंक, दूसरा सरकारी बैंक। सरकारी बैंकों का खेमा उतना अच्छा नहीं था, इंडेक्स के लिहाज से करीब आधे % नीचे भी जाके बंद हुआ और इसने डेज लो से रिकवरी तो दिखाई, लेकिन उतनी शार्प रिकवरी नहीं थी कि डे हाइज को ये पार कर जाए। वजह बिल्कुल साफ थी, बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि सरकारी बैंकों को लेकर सरकार कुछ मेजर अनाउंसमेंट कर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिखा। ऐसे कुछ सरकारी कंपनीज के अंदर भी होता हुआ दिखा। ये भी इंडेक्स करीब आधा % जाके नीचे जाके बंद हुआ है और इसकी भी यही प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे बहुत उम्मीदें थी कि सरकार डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर, विनिवेश को लेकर बहुत बातें बोलेगी, हो सकता है सरकार नाम तक दे दे, हो सकता है सरकार टाइमलाइन तक दे दे, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिखा। इसलिए कुछ सरकारी खेमा आज नीचे आते हुए दिखा। ऑटोस के, क्योंकि ऑटोस के नंबर भी आ रहे थे आज ही बजट के अंदर, तो उसके साथ साथ उसका एक मिक्स जिसम कहते हैं कंबाइन इफेक्ट, वो हमको आते हुए दिखा। और स्पेसिफिक ई व्हीकल्स को लेकर जो बाजार बहुत ज़्यादा सुनना चाहता था उतना बजट के अंदर आया नहीं, इसलिए हमको ये दबाव बनते हुए दिखा। खैर, पूरा निफ्टी का आपके स्क्रीन पर आपको चार्ट दिख रहा है, कौन कौन से शेयर से आज टॉप गेनर्स बने। फार्मास्यूटिकल इंडेक्स मैंने आपको बताया था, उसका टॉप लीडर बना सन फार्मा। इंडसइंड बैंक बैंकिंग को लीड कर गया बट निजी था। इंफ्रा को लेकर जो अनाउंसमेंट हुई, IRB इंफ्रा, L&T उसके दो मेजर प्लेयर बने। सीमेंट में अल्ट्राटेक 4% चला। HDFC, कॉनकोर, टाटा पावर, एशियन पेंट्स, ये कुछ कंज्यूमर वाले शेयर्स जो थे, एशियन पेंट, HUL, इन दोनों के अंदर भी काफ़ी अच्छी बढ़त हमको आती हुई दिखी है, क्योंकि काफ़ी हद तक ये जो कैपेक्स है एक तरह का इन्वेस्टमेंट है और आगे चल के इसका फायदा लोगों को ही मिलने वाला है। लेकिन जहाँ पे थोड़ा नुकसान दिखा वो था M&M, SBI, BEL। आप देख पा रहे हो इसमें SBI, BEL दोनों सरकारी कंपनियां हैं। और चंबल फर्टिलाइजर के अंदर जो फर्टिलाइजर में पहले हाइप थी, इस बार उनका जो बजट आवंटन किया गया वो 1,05,000 करोड़ था। उम्मीद थी कि शायद 1,40,000 आ जाएगा, इसलिए फर्टिलाइजर कंपनी यानी कि चंबल फर्टिलाइजर भी 2 से 2.5% नीचे जाके बंद हुआ। ये था मार्केट्स का हाल। इसके अलावा वित्त मंत्री के बजट पर ET नाउ के कंसल्टिंग एडिटर स्वामीनाथन अय्यर का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। ओवरऑल तो मैं कहूंगा कि रिस्क टेकिंग बजट है। बहुत से बजट टैक्सेशन के बारे में होता है, ये तो स्पेंडिंग के बारे में होता है। और स्पेंडिंग में कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट बजट है। ये कह रहे हैं कि इस इकोनॉमी के लिए सबसे जरूरी चीज इन्वेस्टमेंट है। इसके वजह से 35% गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने वाले हैं इस साल पे। इतना पहले कभी मेरे ख्याल में कभी बढ़ा नहीं है और ये रिस्क ले रहे हैं। इनका जो फिस्कल डेफिसिट है, जेटली साहब कोशिश करते थे कि 3.5, 3.2, 3.0% ऑफ GDP का फिस्कल डेफिसिट करें, यहां तो 6.4% निकाल रहा है। ये बहुत बड़े रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि जब इतने बड़े फिस्कल डेफिसिट है, इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। और अब अगर आप देखें कि हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रहा है, पूरे दुनिया में बढ़ रहा है और इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हिंदुस्तान में आ रहा है, तो ये रिस्क ले रहे हैं। इस बजट में इन्होंने रिस्क लिया कि हम ग्रोथ के लिए जाएंगे। इन्वेस्टमेंट के वजह से अपना इकोनॉमी बहुत जल्दी फास्ट ग्रोथ के लिए 8.5%, इसके वजह से और बहुत से प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे। और अगर इन्फ्लेशन होए, थोड़े रिस्क ले ही लेंगे। और इसके वजह से उन्होंने वो टैक्स साइड पे बहुत कम किया है। अगर आप पूरा देखिए, बहुत से बजट्स टैक्स के बारे में होते हैं, ये बजट सिर्फ स्पेंडिंग के बारे में है। जो मेन टैक्स प्रपोजल्स है, कोई चेंज है ही नहीं। उन्होंने सोच लिया कि जो कंटिन्यूटी ठीक है, जैसे ही था वैसे ही रहने दो, छोटे मोटे चेंज यहाँ वहां है, मगर ब्रॉडली स्पीकिंग टैक्सेशन साइड पे चेंज नहीं है। इनके सबसे ज्यादा एम्फोसिस है कि स्पेंडिंग। मैं इतना ही बोलूं कि इसमें कमी ये है कि उन्होंने कुछ नहीं बोला कि जो प्राइवेटाइजेशन होना था, कि एसेट सेल्स होने थे, कि पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर बेच के नया इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसमें
प्रगति बहुत धीरे धीरे चल रहा है। एयर इंडिया हुआ और अभी अभी मुश्किल से एक नीलांचल इस्पात हुआ, मगर पहले वो कह रहे थे कि 175,000 लाख करोड़ निकालने वाले थे। सेल्स बहुत बहुत कम है, बहुत बहुत धीमे हैं, और ये एक साल के बाद दूसरे साल के बाद चल ही रहा है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना चाहिए कि ये इतना धीमा क्यों है। इतने बड़े बड़े प्लान्स होते हैं और असली में जो इन प्राइवेटाइजेशन के पैसे या एसेट सेल्स के पैसे इतने कम क्यों हैं। इस साल फिर हो गया, इसके बारे में बजट में उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। फाइनली हम इतना ही कहेंगे कि मेरे ख्याल में सब्सिडीज बहुत बढ़ गए होंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी और ऑयल सब्सिडी तीनों बढ़ गए होंगे। इसके वजह से फिस्कल डेफिसिट बहुत ऊंचा है, तो इस पे भी वो रिस्क ले रहे हैं। हम इतना कहेंगे कि तो ये रिस्क टेकिंग बजट है। वो कह रहे हैं कि हम कहेंगे कि इस बजट में हम ग्रोथ के बारे में जाएंगे, और जितना ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा उसके वजह से हमें फायदा हो जाएगा, और चीजों के बारे में हम इतना फिक्र नहीं करेंगे। इसके अलावा व्हाइट ओक कैपिटल के फाउंडर और एमडी प्रशांत खेमका ने कहा है कि बजट में कोई बड़ी नेगेटिव चीज नहीं है, मोटे तौर पर यह बजट अच्छा बजट है। तो थोड़ा सोचना पड़ेगा एंड कोई छोटा मोटा नेगेटिव निकल आ सकता है। तो दिस इज मोर एक कंटिन्यूएशन बजट है। तो लास्ट ईयर का बजट बहुत उत्तम बजट था, जैसे कि आपको याद होगा मार्केट में सभी को बहुत स्पेसिफिक चीजें थी जो बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स एंड अनाउंसमेंट्स थे। तो उस उत्तम बजट को एक तरह से इस बजट ने जारी रखा है, और कुछ चेंज बदलाव ज्यादा नहीं किया है। एक रियलिस्टिक बजट है, प्रो ग्रोथ बजट होते हुए भी रियलिस्टिक बजट है। इसमें और एक ये अच्छी बात है कि कोई भी बड़ी नेगेटिव पॉइंट नहीं, जैसे मैं कह रहा था, कोई बड़ा नेगेटिव लार्ज सब्सिडी या बड़ी कोई स्कीम ऐसी जो कि फिस्कल डेफिसिट हाई है बट कैपिटल एक्सपेंडिचर के चलते हाई है, विच इज पॉजिटिव। इट्स लाइक अगर आप एक फैमिली हो, एक तो आप पैसे वेकेशन में जाकर खर्चा कर देते हो, दूसरा आप अगर वही और डेफिसिट में चले जाते हो, दूसरा अगर आप वही पैसे बच्चों की पढ़ाई में लगाओ तो दैट इज एन इन्वेस्टमेंट, एंड वो नेगेटिव नहीं है अगर आप डेफिसिट में जाओ तो भी। तो ये जो बजट में स्पेंडिंग है वो कैपिटल स्पेंडिंग है, उसके चलते फिस्कल डेफिसिट हाई होना कोई मेरे अनुसार कोई नेगेटिव नहीं है। एब्सर्ड पॉपुलिस्ट मेजर्स का भी डर था, बड़ी सब्सिडी पॉपुलिस्ट, ऐसा कोई पॉपुलिस्ट नेगेटिव मेजर इसमें नहीं है। तो ये सब मैं कहूंगा कि इसमें पॉजिटिव रहा है। ऑब्वियसली जैसे धर्मेश भाई भी कह रहे थे, कुछ ना कुछ उम्मीद ज्यादा रहती है हर बार। तो मेरे हिसाब से रिफॉर्म्स के फ्रंट पे मेरी उम्मीद ज्यादा थी, एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स की मैं कहूँगा उम्मीद ज्यादा थी। डाइवेस्टमेंट टारगेट और बड़ा हो सकता था, मे बी उन्होंने रियलिस्टिक टारगेट रखा हो 65,000 करोड़ का अगले साल, बट होपफुली ये टारगेट अचीव कर ले। तो रियलिटी में वो टारगेट अगर अचीव होता है तो रियलिटी स्टिल ज्यादा डिक्लाइन नहीं होगा। चलिए, इस बजट बुलेटिन में फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला बरकरार है, बने रहें। वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, लेकिन इस बजट को बनाने में वित्त सचिव टीवी स्वामीनाथन और दीपम सचिव तुहिनकांत पांडे की भी बड़ी भूमिका रही, जिसको लेकर हमारे सहयोगी राजेश सिंह ने दोनों से बात की। हमारे साथ दीपम सेक्रेटरी तुहिनकांत पांडे और फाइनेंस सेक्रेटरी मिस्टर स्वामीनाथन है। तो सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है कि 35% बढ़ाया गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर को, और उस पर सबसे ज़्यादा सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या एक्सपेक्टेशन, मार्केट एक्सपेक्टेशन था कि 20% मैक्सिमम बढ़ेगा, तो ये पैसा कैसे आएगा, कहाँ से आएगा? और दूसरी तरफ आप ये भी बोल रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट को हम 6.4% पे मैनेज कर लेंगे। ये सोर्सेज दो हैं, एक तो टैक्स रेवेन्यू में 10% का इंक्रीज हम अनुमान कर रहे हैं कि आएंगे, और दूसरा बोरोइंग। और इसका पूरा हिसाब किताब हमने बजट डॉक्यूमेंट्स में दिया है, तो ये बिल्कुल फीसिबल है। हम और
हमने कंजर्वेटिवली एस्टिमेट किया है रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू और बोरोइंग। तो टू मेन सोर्सेस, 2 लाख करोड़ इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू, अबाउट 1.5 लाख करोड़ इंक्रीज इन बोरोइंग, ये मेन सोर्सेज हैं, बाकी सब तो ऑलमोस्ट बैलेंस्ड। बिल्कुल, बोरोइंग में आपने 15 से बढ़ा के 16.5 के करीब किया, पर इसमें जो एक सबसे बड़ा कैच ये है कि पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी, उससे आपको हर साल 5 से 6 लाख करोड़ मिलता है। वो तो इस साल कम मिलेगा नेक्स्ट ईयर, लेकिन नेक्स्ट ईयर 4 साल से ज्यादा हो गए जीएसटी को लाए हुए, कब वो जीएसटी में आएगा उस पर क्या, क्योंकि आप दोनों रेवेन्यू तो जीएसटी काउंसिल का मामला है और इसमें स्टेट्स का इंटरेस्ट ये है कि उनका ऑटोनॉमी में कुछ नेगेटिव इफेक्ट ना हो, तो इसके लिए हम इट्स नॉट समथिंग विद द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिसाइड। दूसरी तरफ दीपक सेठी सर, आपसे जानना चाहेंगे मिस्टर पांडे की डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट हमारा 1,75,000 करोड़ का था, अगर हम देखें तो अभी शायद 13 या 14,000 करोड़ हम ला पाए हैं। दूसरी तरफ एयर इंडिया का डेट हमने करीब 52,000 करोड़ का वेव ऑफ किया है, तो एक तरह से देखिए तो नेगेटिव प्रोसीड्स हो रहा है डिसइन्वेस्टमेंट का। नहीं, देखिए आप डिसइन्वेस्टमेंट को यदि आप इस दृष्टि से देखें कि वो कितना पैसा दे रहा है, तो आप वो उस संदर्भ में नहीं देखते हैं कि एयर इंडिया के होने से हमें रोज़ का 20 करोड़ पैसा नहीं देना पड़ेगा जो सरकार देती आई है, और 10 साल में यदि 1,10,000 करोड़ के गारंटीज और फंड्स एयर इंडिया को दिए गए, तो क्या वो बजट से नहीं दिए गए? तो दो पहलू हैं। आई थिंक इसको यदि आप रिफॉर्म दृष्टि से डिसइन्वेस्टमेंट को देखें तो इससे ये लगेगा कि हम ठीक ट्रैक पे हैं और हम एम्प्लॉयमेंट और जो उसका जो पोटेंशियल है उसको बढ़ाने के लिए, हम उसकी वृद्धि के लिए तत्पर हैं। तो इसलिए एक मैं इंटरप्ट करके कहूँगा, ये जो 51,000 आप बोल रहे हैं ये आज का घाटा नहीं है, ये पुराना घाटा को आज सरकार के अकाउंटिंग में हम क्लियर करता है, लेके आ रहे हैं और क्लीन अप ये पुराना लॉस है, ये लॉस तो हो चुका है, रोज 20 करोड़ का घाटा होता था, इसको अभी खत्म कर दिया, ऐसा नहीं आज अकाउंट में आज आया है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहें कि इस साल का जो टारगेट है वो 65,000 करोड़ का है, इसमें क्या आप इंक्लूड कर रहे हैं बीपीसीएल, एससीआई जो कि पिछले साल के टारगेट में था, या उसके अलावा ये है? नहीं, वो तो चलती रहेंगे, ट्रांजैक्शन जब कंक्लूड होती हैं तभी वो होता है। जैसे कि ये जो भी हमारी ट्रांजैक्शन हैं वो बिडिंग प्रक्रिया से होती है, जब बिडिंग कंप्लीट होता है और शेयर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं तभी रिसीट्स आते हैं, तो वो तो जैसे चलता रहता है, ये तो रोलिंग है। इसी के साथ ही प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सान्याल और सचिव डीई अजय सेठ से भी हमारे सहयोगी राजेश सिंह ने बातचीत की है, क्या कुछ निकल कर आया बताते हैं आपको। हमारे साथ बात करने के लिए बजट पे प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर से संजीव सान्याल और अजय सेठ डीई सेक्रेटरी हैं। सबसे पहले सर हम आपके पास आना चाहेंगे कि जो सबसे बड़ी चीज़ की गई है कैपेक्स 35% 7.5 लाख करोड़ बढ़ाया गया, पैसा कहाँ से आएगा? दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट को भी हम 6.4% पे ले आएंगे, घटा देंगे, कैसे बैलेंस बनेगा? इसका तो पूरा बजट में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और बजट ग्लांस में पूरा नंबर्स हैं उसमें कि रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो एक्सेप्ट सेंट्रल एक्साइज करीब 14% से ज़्यादा ग्रोथ है, सेंट्रल एक्साइज में कम है, तो ओवरऑल ग्रोथ रेट जो 10% लगती है, उसका कारण ये है कि सेंट्रल एक्साइज जो कि ये नवंबर में कम किया गया था और दैट इज़ नॉट स्पेसिफिक ड्यूटी, तो ये ग्रोथ है। और साथ ही साथ जो एक्सपेंडिचर में रियलिस्टिक नंबर लेके जो तैयार किया गया है, तो उसका तो पूरा आंकड़ा इस बजट में पेश किया गया है। तो बोरोइंग्स की अगर आप बात करें तो वो 15 लाख करोड़ से 16.5 लाख करोड़ बढ़ा रहे हैं आप, शायद उससे भी 16.61 लाख करोड़ बोरोइंग्स अगर कर रहे हैं, तो ऐसे केस में जब हम ऑलरेडी हम इस आई थिंक लास्ट फिस्कल में 8 लाख करोड़ लगभग सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में दे रहे हैं, ऐसे में कितना ये जस्टिफाइड है आज के दिन में? इसको कैसे आप महंगाई को कंट्रोल करना, इस सबको कैसे बैलेंस होगा? देखिए, इसका इस आंकड़े को हमें एक नंबर से हट के देखना पड़ेगा कि हमारी इकॉनमी का साइज पिछले वर्ष क्या था, इस वर्ष क्या है और आगे वाले वर्ष में क्या आने वाला है। तो ये 6.9% से 6.4% फिजिकल डेफिसिट, उसे मोटे तौर पे कह लें कि वो बोरोइंग्स हैं सारी जो सरकार बाकी सोर्सेज से हट के जो बोरो करती है विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न सोर्सेज से, वो जो वहाँ पर करती है, एक तरह से बोरोइंग वो कम हो रही है, बढ़ नहीं रही हैं। पर अगर आप डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स की बात करें, आपका 1,75,000 करोड़ का टारगेट था, अभी तक जो
रफली एस्टिमेट है वह सिर्फ 14,000 करोड़ आया है। अगर LIC हो भी जाता है तो भी आप टारगेट से बहुत ज़्यादा पीछे रहेंगे। अगले साल के लिए भी टारगेट बहुत कम रखा गया है। देखिए, उसमें अभी LIC का एक बहुत ही एडवांस स्टेज में पहुंचा है और उसकी उम्मीद है कि जल्दी ही वो उसका IPO मार्केट में उसका आएगा। और जहाँ तक ये नंबर्स हैं, तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एक रियलिस्टिक नंबर, एक कंजर्वेटिव नंबर लेके चला गया है कि जहाँ पर हम एक बड़ा ही ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहना चाहते हैं, एम्बिशियस बट डूएबल नंबर्स विच आर देयर, एंड दिस इज नंबर वेयर पुट लाइक जहाँ पर हम ये चाहेंगे कि वो एक सरप्राइज हो कि हम अपना पूरा प्रयास करके उससे और आगे, कहीं और आगे निकल सकें। मिस्टर सान्याल, आपने कल इकोनॉमिक सर्वे करने के बाद बोला था कि 8 से 8.5% ग्रोथ हम अगले फिस्कल में कर सकते हैं। आज बजट के बाद आप क्या कहते हैं, क्या वो फिगर्स मेंटेन होगा या नॉमिनल ग्रोथ अगर 6% की बात कर रहे हैं हम तो? देखिए, जो टीम है दो फोरकास्ट देते हैं वो एक ही टीम है, लेकिन इसके किस कारण से कर रहे हैं उसको आप याद रखिए। एक है बजटिंग पर्पस के लिए, उसमें हमको कंजर्वेटिव रहना पड़ता है और वो नॉमिनल नंबर है। नॉमिनल नंबर क्यों? क्योंकि वो बजट एक नॉमिनल जो कर या एक्सपेंडिचर होता है सब नॉमिनल नंबर है। तो जो उसमें जो अजम्पशंस हैं वो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो कंजर्वेटिव होना चाहिए, दूसरा है कि आपको अगले साल का डिफ्लेटर का एक कोई अनुमान लगाना पड़ेगा। याद रखिए कि इस साल चूंकि WPI उछल गया है तो अगले साल उसका एक बेस का इफेक्ट पड़ेगा, तो वो शायद थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो इसीलिए कुल मिला के हम लोगों ने जो बजट में जो फोरकास्ट किया है वो कंजर्वेटिव है। आपका ये मानना है कि कंजम्पशन बढ़ेगा अगले साल? कोई हाँ, तो वो तो रियल ग्रोथ का विषय है और वो रियल ग्रोथ में हम लोगों ने 8 से 8.5 का किया है। और उसमें हमने जो हमारे जो फोरकास्ट के जो अजम्पशंस हैं वो बहुत साफ तरीके से बताया। जैसे कि हमने बताया है कि जो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेवाएं जैसे हैं उनको उनमें बहुत सारे उनकी तकलीफ़ें हुई हैं पिछले 2 साल में, क्योंकि महामारी के लहर आते रहे हैं। हमने अज्यूम किया है कि ये आगे जाते वैक्सीनेशन इत्यादि के कारण ऐसे बार बार जो रुकावटें आई हैं वो नहीं आएंगी। अगर ये नहीं होता है तो ये हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस सर्विसेज को खोल देंगे। ये अपने आप ही इनमें मांग तो है, प्रॉब्लम है कि हम लोग रुकावट डालते जाते हैं कि, लेकिन मेरा अनुमान है कि ये अगले साल में, और यही अजम्पशन हम लोगों ने इसमें डाला है कि इसको खोल के रखेंगे तो 8 से 8.5 का जो आंकड़ा हमने फोरकास्ट में डाला है ये आराम से हम लोग इसको कर पाएंगे। आपको तो मालूम है कि IMF का जो फोरकास्ट है वो हमसे ज्यादा तगड़ा है। इन सब के अलावा बजट में क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स का ऐलान किया गया है। अगर आपकी कमाई होती है क्रिप्टो करेंसी पर से तो आपके ऊपर फ्लैट 30% का टैक्स लगेगा और साथ ही में 1% TTSP। अब इसको लेकर किस तरह की पेचीदगियां है और क्रिप्टो इंडस्ट्री इसे कैसे देखती है, तमाम बातें की गई हैं बजट मंत्रा में। आइए आपको इसके अंश सुनाते हैं। कोरोना ने महंगाई बढ़ाई, महंगाई ने जेब काटी, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। अब एक आम टैक्स पेयर को क्या उम्मीद होती है कि उनके हाथ में 2 पैसे ज्यादा आ जाएं और जिंदगी सुकून से बीती जा सके। लेकिन इस ख्वाब को बजट ने चकनाचूर कर दिया है। राहत या छूट तो छोड़िए, बजट के भी कोई विकल्प नहीं दिए गए हैं। तो इस बजट को एक आम आदमी, एक निवेशक, एक आम टैक्स पेयर और हाँ, क्रिप्टो में पैसे लगाने वालों के नजरिए से कैसे देखा जाए, कैसे इसका विश्लेषण किया जाए, बजट मंत्रा की इस पेशकश में हमारा फोकस इसी पर होगा। और हमारे साथ एक बहुत ही दमदार पैनल मौजूद है। के करके सबसे मिलवाती हूं आपको। हमारे साथ है SBI म्यूचुअल फंड के चीफ बिजनेस ऑफिसर DP सिंह, वैल्यू रिसर्च के CEO धीरेन्द्र कुमार, DSP म्यूचुअल फंड के MD और CEO कल्पेन पारेख, मनी एडू स्कूल के फाउंडर अर्नब पंड्या और साथ ही कॉइन क्रंच इंडिया के फाउंडर नमिर संघवी, क्रिप्टो एक्सपर्ट अजीत खुराना और साथ ही वजीर एक्स के फाउंडर और CEO निश्चल शेट्टी। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। निश्चल, आपके पास आऊंगी सबसे पहले। देखिए, कुछ हो या ना हो, कम से कम क्रिप्टो पर बैन तो नहीं लगा। हाँ,
टैक्स लग गया है फ्लैट 30% का और 1% टीडीएस के साथ, लेकिन इसको देखने के भी बहुत सारे मायने हैं। दो एंगल तो खासतौर से साफ निकल कर आते हैं कि बैन नहीं लगा, लेकिन टैक्स के दायरे में आने से कम सरकार की जो कवायद है ना, इसको एक एसेट मानने की ओर बढ़ने को लेकर, उसमें हमने बढ़त आती हुई देखी है। सरकार कहीं ना कहीं उस दिशा में आगे जाती हुई दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, आई मीन पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है और हम अभी भी अनपैक करें कि क्या क्या इसमें अफेक्ट होगा, बट इन जनरल जो सबसे बड़ा आई थिंक पॉजिटिव एंगल है वो ये कि अब तक सभी लोग ये सोच रहे थे कि इंडिया इसे रेगुलेट करेगा कि बैन करेगा। अब एटलीस्ट ये क्लैरिफाई हो गया कि इंडिया इसको रेगुलेट ही करेगा और क्योंकि अब टैक्सेशन में ऑफिशियली आ चुका है तो बैन के बारे में किसी को अभी डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डिजिटल एसेट्स का डेफिनेशन भी आ चुका है जो बहुत ही अच्छा है और इंडिया आई थिंक दुनिया में ऐसे बड़े कंट्रीज में से एक ऐसा कंट्री है जिन्होंने जल्दी से और तेजी से क्रिप्टो रेगुलेशंस की तरफ बढ़ने का ये सॉर्ट ऑफ वे दिखाया है अभी सबको कि आपको एक्चुअल रेगुलेशन आप लाओ या ना लाओ उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन आप एज अ नेशन तेजी से इसकी तरफ बढ़ना है तो ये जो टैक्सेशन का राउट है ये बहुत ही स्मार्ट आई वुड से एक सोल्यूशन निकाला इंडिया ने कि हम इसे टैक्स करते हैं ताकि इंडस्ट्री देखते हैं इसके बाद कैसे चलता है और कितनी तेजी से बढ़ेगा ये। इंडिया को ये भी मालूम पड़ेगा कि इंडिया में कितने लोग हैं जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसमें से कितने लोग हैं जो प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो ये सब जो डेटा गैदरिंग होगा इसके वजह से आई थिंक ये एक पॉजिटिव अप्रोच है इंडियन गवर्नमेंट ने जो लिया है। जी आपके पास आना चाहूंगी मैं, ये बताएं कि अब ये जो टैक्स की खबर आई है इसको देखते हुए क्या माना जाए कि इसको क्रिप्टो करेंसी को एसेट क्लास का दर्जा मिल गया है? नहीं, इसको ऐसे नहीं समझना चाहिए, केवल इसको ये देखना चाहिए। अभी तक तो यही कंफ्यूजन था कि ये करेंसी है कि एसेट है और सरकार ने अभी फिलहाल ये निर्धारित किया है कि भाई इस पे टैक्स लगेगा और 30% गेंज का लगेगा और नुकसान का अगर कोई होता है तो उसका कोई क्रॉसओवर आपको नहीं मिलेगा, उसको आप ऑफसेट नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत रिलक्टेंटली सरकार के लिए इसको बैन लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा था और सरकार ने बहुत ही स्ट्रांगली डिस्करेज करने के लिए, मैंने आज तक कभी कोई ऐसा एसेट नहीं देखा है जिसका कि फायदे का पार्ट पे टैक्स मिलेगा सरकार को, लेकिन नुकसान का किसी को क्रेडिट नहीं मिलेगा। हर एक ट्रांजैक्शन पे 1% टीडीएस लगेगा और गिफ्ट पे भी, मतलब सरकार ने भविष्य में किसी ट्रांजैक्शन पे एक लूप होल जिसको कि कोई एक्सप्लॉइट नहीं करे उसके लिए गिफ्ट टैक्स पे भी इसमें टैक्स का प्रावधान रखा है। उसके अलावा इसमें जो ये एक जो नया जो सेक्शन ऐड किया गया 194S शायद उसका नाम है, उसमें यह है कि अगर आप सरकार ने इसका भी इंतजाम किया है कि अगर आप क्रिप्टो खरीदते हैं और उसके बाद उस क्रिप्टो को अपने वॉलेट में लेकर के अगर आप उससे टेस्ला कार खरीदने चले जाते हैं तो जो मुनाफा हुआ है उसका 30% आप पहले दे दीजिए, उसके बाद आप कुछ खरीदिएगा। लेकिन यहाँ पर देखना जरूरी ये है कि वर्चुअल एसेट के तहत तमाम डिजिटल एसेट्स को शामिल किया गया है। तो अजीत जी इसका मतलब मैं क्या समझूं, ब्लॉकचेन बैक टेक्नोलॉजी एनएफटी जिसको हम कहते हैं, क्या वो भी इस टैक्स के दायरे में आएगा? इसको जरा आप समझाएं हमें। बहुत क्लियरली एनएफटीज तो मेंशन किए गए हैं फाइनेंस बिल में। मुझे लगता है कि जितने डिजिटल एसेट्स हैं, इवन वो अगर क्रिप्टोग्राफिक नहीं है तो सिर्फ क्रिप्टो एसेट्स नहीं, जितने भी क्रिप्टो एसेट्स हैं वो सारे के सारे इसमें कवर्ड हैं। जो चीज आप कह सकते हो इसमें कवर्ड नहीं होगी, वो जो दूसरा प्रावधान था अराउंड सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, वो इसमें कवर नहीं होगी क्योंकि वो तो लीगल टेंडर है। तो इसमें आई थिंक देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मैं आना चाहती हूँ नैमिष, शायद आप इस पर हमें विस्तार से जानकारी दे सकते हैं। जिस लीगल टेंडर की बात करें, डिजिटल करेंसी की बात करें, जिसका खाका आरबीआई ने लाना है, ये किस तरह से काम करेगी? अगर मैं ऑनलाइन कोई भी ट्रांजैक्शन करती हूँ जो कि क्रिप्टो से जुड़ा हुआ लेन देन है, क्या उसको ये रिप्लेस कर पाएगी डिजिटल करेंसी, या जिसको ई रुपया के नाम से लोग कह रहे हैं कि आने की ज्यादा संभावना है? राइट, थैंक यू। सो जो ई रुपी आज अनाउंस हुई है, इट्स नॉट कि आज का वो अनाउंसमेंट था, इट्स बीन इन वर्क्स। 2019 से सरकार उस पे काम कर रही है और रिसर्च बार बार उनकी पब्लिश होती रहती है। जिस तरह से उसको देखा जाता है या देखा जाना चाहिए
वो बस वही है कि आपका रुपी एक नई टेक्नोलॉजी को यूज करके एक और डिजिटल वर्जन में आपके सामने लाया जा सकता है। मेरे हिसाब से आप अगर पेटीएम यूज करते हो तो इट इज स्टिल डिजिटल रुपी, लेकिन उसके पीछे पेटीएम आ जाता है, उसके बाद सेटलमेंट बैंक्स आ जाते हैं, जबकि सीबीडीसी एक डिजिटल करेंसी होगी जिसको डायरेक्टली आरबीआई कंट्रोल कर सकती है। आरबीआई के इशू किए हुए वॉलेट्स या टेक्नोलॉजी यूज होगी, सो इट विल बी इक्विवेलेंट टू रुपी, या आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस करते हो, लेकिन ये कंट्रोल सीधा रिजर्व बैंक के हाथ में होगा। से इसका हमें इंतजार करना होगा कि जब तक आरबीआई हमें फाइन प्रिंट्स नहीं देगा इस बारे में इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाएगा। लेकिन कल्पेन जी, मुझे अब ये बताएं, क्योंकि क्रिप्टो में निवेश शायद सही शब्द नहीं होगा, लेकिन पैसे लगाने वालों की तादाद अब इतनी ज्यादा है, अब इस पर टैक्स आ गया है। एक आम क्रिप्टो में पैसे लगाने वाला इंसान इसको कैसे देखेगा, और वो भी सीधा फ्लैट 30%? कविता, मुझे क्रिप्टो के बारे में ज्यादा क्लैरिटी नहीं है क्योंकि इस एसेट क्लास को मैंने समझा नहीं है, और मेरा ये मानना है कि एक अलग सेगमेंट है जिनके पास रिस्क प्रोफाइल और रिस्क एपेटाइट अलग है, जो अपने 100 रुपए में से कुछ पैसा क्रिप्टो में लगाता है और बाकी का पैसा और एसेट्स हो जैसे बॉन्ड्स है या इक्विटी है या फंड्स है उसमें लगाते हैं। तो मुझे नहीं, अभी ये थोड़ा बहुत जल्दी होगा समझना कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है। और मैं हमेशा मानता हूं कि बजट के दिन के जो अनाउंसमेंट्स होते हैं उसका रियल आफ्टर इफेक्ट जो है वो डे 1 पे नहीं समझ आता है। ये थोड़े लंबे ट्रेंड्स है, थोड़े डीपर ट्रेंड्स है, वो कुछ टाइम जाने के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी उठता है अर्णव जी, सरकार की मंशा का। देखिए, इसकी क्रिप्टो की अपनायत को लेकर तो हमेशा से सवाल उठ ही रहे थे, तो सरकार ने अगर अपनाना शुरू भी किया है तो पहले ही उठते टैक्स क्यों लगा दिया? देखिए, सरकार ने एक बहुत सिंपल चीज की है कि उन्होंने 1 अप्रैल 2022 से क्रिप्टो को एक सेपरेट टैक्सेशन में डाल दिया, क्योंकि अब तक क्या है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि क्रिप्टो के ट्रांजैक्शन को टैक्स की दृष्टि से किस तरह से देखें। तो 1 अप्रैल 2022 से सरकार ने एक बहुत क्लियर कर दिया, 30% फ्लैट टैक्स प्लस नो डिडक्शन, यानी कि सिर्फ आपने जो कॉस्ट एक्विजिशन का कॉस्ट है वही आप डिडक्ट कर सकते हो, नो अदर कॉस्ट, और कैरी फॉरवर्ड नहीं, यानी कि आपने लॉस किया तो आप क्रिप्टो के सामने सेट ऑफ कीजिए, कोई अदर हेड ऑफ इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं, और कैरी फॉरवर्ड भी नहीं, दूसरे सभी लॉस को आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो ये है फ्रॉम 1 अप्रैल। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए डीपी सर, सवाल अब ये होगा कि सेंटिमेंट्स पर किस तरह का मैसेज जा रहा है, क्योंकि देखिए, निजी तौर पर जितना मैं लोगों से बात करती हूँ, भले ही एक्सपर्ट से बात कर रही हूँ या आम जनता से बात कर रही हूँ, म्यूचुअल फंड भले ना जानते हो, लेकिन क्रिप्टो के बारे में लोग जानते हैं, निवेश करने की, पैसा लगाने की, मुनाफा कमाने की उत्सुकता उनमें है। अब इस फैसले के जरिए, इस ऐलान के जरिए किस तरह का सेंटिमेंट उनमें जा रहा है, क्योंकि आज की तारीख में भी देखिए, हम आर्थिक जागरूकता की बात करते हैं, लेकिन उसमें भी लोगों का जो इंटरेस्ट है ना, वो क्रिप्टो में ज्यादा है। कविता जी, एक्चुअली मैं वापस जाऊंगा जो धीरेन्द्र जी ने जवाब दिया था कि क्योंकि इसको बैन इसलिए नहीं लगाना चाहते कि बहुत सारे लोगों ने पैसा लगा रखा है, अगर उस पर बैन लगाया जाए या ऐसा कुछ भी रिस्ट्रिक्टिव एक्ट किया जाए तो उसमें लोगों का बहुत नुकसान हो सकता है और उससे सेंटीमेंट बहुत खराब होगा। पर ये जो हम निवेश की भाषा में बात करते हैं रिस्क रिवार्ड की, तो उन्होंने सीधा सीधा रिस्क इसका ये बढ़ा दिया और रिवार्ड को कम कर दिया। एक तरफ तो ये कह दिया कि आपका टैक्स लगेगा 30%, दूसरी तरफ ये कह दिया कि 1% टीडीएस कटेगा। चलिए, तो यहाँ पर कुल मिलाकर सरकार ने एक कदम तो उठाया है क्रिप्टो को अपनाने की ओर, और भले ही टैक्स के रूप में, लेकिन जिन भी लोगों को इसके बैन होने का डर सता रहा था, कम से कम वो खत्म हो जाना चाहिए। तो नैमिष, निश्चल और अजीत खुराना जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। बजट पेश होते ही सबकी निगाहें इस बात पर होती है कि आखिर क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हुआ है। टैक्स में बदलाव से क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ है, बताने के लिए हमारी सहयोगी मानसी दवे का रुख करते हैं, जो तमाम डिटेल्स हमको दे रही हैं।
बिल्कुल, देखिए तो बजट आज जो कि सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा इवेंट नजर आया और बजट जो है ग्रोथ बजट, स्ट्रॉन्ग बजट, एक तरह से कह सकते हैं डेवलपमेंटल बजट साबित होता हुआ दिखा, क्योंकि शुरुआत में ही हमने देखा किस तरह से बाजार में मोमेंटम भी देखने को मिला और बजट के साथ साथ भी बाजार में जो मूड माहौल है वो पॉजिटिव ही नजर आया। क्लियरली यहाँ पर एक डिप हमने देखा बाजार में, लेकिन उसके बाद अच्छी तेजी के साथ ही बाजार जो है बंद होते हुए धुआंधार एक्शन देखने को मिला। इस बजट में सबसे ज्यादा अब आपको यही जानना होगा कि क्या कुछ सस्ता होता हुआ दिखा, क्या कुछ महंगा होता हुआ दिखा, क्योंकि बजट जब आप घर का भी बनाते हैं तो सबसे पहली बात यही तो आप जानना चाहते हैं कि भाई क्या चीज महंगी होती हुई दिखी है, उसे हम जान ले, फिर उसे कितना खरीदना है या क्या करना है सोचा जाए, और सस्ता हमारे लिए क्या हो रहा है। तो चलिए एक एक करके आपको ये दोनों चीजें बता देते हैं जो कि आपके लिए जानना काफी अहम है। सबसे पहले सस्ता क्या होता हुआ दिखा, कौन सी ऐसी कमोडिटीज प्रोडक्ट्स रही जो कि अब आपके लिए सस्ती हो जाएगी। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, देखिए यहाँ पर काफी कुछ आता हुआ दिखा और इसमें अब आगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जब आप खरीदने जाएंगे तो हो सकता है कि आपको सस्ते दामों पर मिलती हुई दिखे। इसी सूची में पहनने वाली डिवाइसेस यहाँ पर जो है, यानी कि जो डिवाइसेस हम इलेक्ट्रॉनिक यूज करते हैं उन डिवाइसेस की कीमतों में भी अब आपको याद होगा इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें, पिछले दिनों भी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को लेकर काफी कुछ हमने आपको बताया किस तरह से ये सेक्टर एक थीम पकड़ सकता है, डिमांड किस तरह से ज्यादा है और इसी डिमांड के चलते जहां पर जिस चीज की ज्यादा डिमांड है ऑफ कोर्स उस पर फोकस तो करना ही होगा और इस बजट में वित्त मंत्री साहिबा ने इस पर फोकस भी किया है जिसका एक इम्पैक्ट आप देख सकते हैं। इसके अलावा सुनने के लिए इस्तेमाल होने वाले डिवाइसेस जो हैं वो तो आपको सस्ते होते हुए मिलेंगे ही, लेकिन साथ ही इलेक्ट्रिक स्मार्ट मीटर की कीमतें जो हैं वो भी अब जब खरीदने जाएंगे तो हो सकता है कि सस्ते दामों पर मिले। मोबाइल फोन चार्जर्स इस सूची में रहे, साथ ही कट ऑफ पॉलिश डायमंड्स पर कस्टम ड्यूटी जो है वो घटकर 5% होती हुई देखिए। आपको याद होगा बजट से पहले हम आपको लगातार बता रहे थे कौन सी चीजें हैं जिस पर, कौन से सेक्टर्स हैं जिस पर जिनकी उम्मीदें हैं बजट से और क्या कुछ चीजें जिनके टैक्स रेट हैं उनमें कटौती होती हुई दिख सकती है, और ऐसी ही सारी चीजें थी जो कि बजट में आती हुई दिखी। इसमें एक और चीजें थी केमिकल सेक्टर को लेकर जो कि काफी एक्शन में है पिछले कई समय से, और केमिकल स्पेस को लेकर एक्सपर्ट्स की भी काफी पॉजिटिव राय होती है। इस बजट में केमिकल को लेकर भी कुछ आया है। चुनिंदा केमिकल जैसे कि मेथनॉल और एसिटिक एसिड हैं वो भी सस्ते हुए दिखे हैं। रोजमर्रा की घर की चीजों में कई सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जिसका इस्तेमाल आप जरूर करते हैं लेकिन उनके मायने आपको नहीं पता होते हैं, लेकिन अब जो प्रोडक्ट्स आपको खरीदते हुए इनडायरेक्टली जब आप कंजम्पशन यहाँ पर इन चीजों का करेंगे तो वहां पर आपको थोड़ा हो सकता है कि जेब से कम पैसे खर्च करने पड़े। इसके अलावा स्टील स्क्रैप्स पर कस्टम ड्यूटी में छूट 1 साल के लिए और बढ़ा दी गई है। स्टील सेक्टर पर काफी फोकस रहा और स्टील से जुड़ी जो तमाम रिसर्च आती हुई दिखी उससे हमने पिछले 1 साल में देखा है कि स्टील सेक्टर लगातार एक्शन में रहा, चाहे फिर ग्लोबल मार्केट से मोमेंटम आता हुआ दिखा हो, क्योंकि स्टील और आईटी कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनका ताल्लुक सीधा ग्लोबल मार्केट से भी है। बाहर के बाजार, विदेशी बाजार में कुछ होता है तो उसका असर भी सीधे तौर पर इन सेक्टर्स पर पड़ता दिखता है, और इसी वजह से पूरे साल ये 2 सेक्टर्स रहे जो कि काफी चर्चा में रहे। और स्टील की कीमतें जो हैं, स्टील स्क्रैप्स पर जो कस्टम ड्यूटी की छूट है उसे 1 साल तक बढ़ा दिया गया है। तो ये तो हो गई सस्ती चीजों की लिस्ट, लेकिन महंगा भी तो कुछ होता हुआ दिखा है। सूची छोटी है लेकिन ये भी एक लिस्ट है। सोडियम साइनाइड जैसे केमिकल्स जो है महंगे होते हुए दिखे, स्टील उत्पाद, स्टील कोटिंग वाले उत्पाद और साथ ही हाई स्पीड स्टील जो है वो महंगा होता हुआ। तो क्लियरली यहाँ पर स्क्रैप जो है स्टील वो सस्ता हुआ दिखा है, लेकिन स्टील के जो प्रोडक्ट्स है, उत्पाद जो है उसमें कुछ हद तक बढ़ोतरी होती हुई दिख सकती है। इसके अलावा छाते पर ड्यूटी जो है बढ़ गई है, 20% ही होता हुआ दिखा। ऑन अ लाइटर नोट, अब बारिश की सीजन जब आएगी तो छाता हो सकता है आपका महंगा हो जाए, लेकिन चलिए कई सारी चीजें ऐसी रही जो कि आपकी जेब पर ज्यादा एक फर्क नहीं लाएगी, या कह सकते कि ज्यादा परेशान आपकी जेब को नहीं करेंगे। कहते हैं ना कि होल इन दी पॉकेट, ये नहीं होता हुआ दिखेगा, क्योंकि काफी सारी चीजें थी जिस पर सरकार ने फोकस भी किया और काफी सारे ऐसे ऐलान आते हुए भी दिखे। इसीलिए तो कहा गया ना इट्स अ ग्रोथ बजट, एक बूस्टर बजट रहा। चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे भी इजाजत है, नमस्कार।